let me give you a group discussion topic, and I'm giving you a topic which was actually asked in IUCL, and that is violence is increasing in India. Violence is increasing in India, and it's becoming aggressive nation. It's becoming aggressive nation. I have typed it also. You can see it also. Violence is increasing in India, and it's becoming aggressive nation. It means India is becoming aggressive nation. India is becoming aggressive nation. Sir, please repeat one more time. Okay. Violence is increasing in India. Violence is increasing in India, and it's becoming aggressive nation. Violence is increasing in India, and it's becoming aggressive nation. Violence is increasing in India, and it's becoming aggressive nation. So I think this is visible to everybody what I've written. Think for a while. Structure is very important. First, I will come to each one of you for introduction. I will come to each one of you for introduction, and then I'll open the house for discussion. So I give you 2 minutes to think how you want to start it. Sorry, sir. Can you please repeat it, sir? Yes. So violence is increasing in India. Violence is increasing in India, and it is becoming aggressive nation. I give you 1 or 2 minutes to jot down your points, and I'm coming to each one of you for opening it.
Okay, so Amit, I think you can start now. Hello, my name is Amit. First of all, thank you, sir, for giving me this opportunity to this discussion. The topic given to us is violence is increasing in India and it is becoming aggressive nation. So, according to me, sir, I totally agree with that. India is becoming very aggressive nation. Now today, nobody have any patience. Each day we see that people are fighting on traffic lights, and even we have seen small kids fighting in schools, and their fight have grown to such a violence that they have beaten each other with some sticks, and also violence in homes is also increasing. Domestic violence is also increasing these days. uh, so I think there are many reasons for that, like some violence specific video games. uh, Also there is a pattern of violence in movies and some web series which children are watching, and they are putting a impact on them. So I think we should discuss about the solutions so that this violence can decrease from childhood. I appreciate Amit. Okay, Raj, everybody is Yes, sir. going to one by one. Huh? Have you Yes, completed, sir. Amit? Yes, sir. One by one, everybody is going to say. Rishabh, your time. Yeah. Yes, sir. My name is Rishabh Rajkumar. Sir, thank you for giving me the chance to speak. Violence is something that is done to somebody without the permission of somebody to harm them physically, mentally, and psychologically can be also one word. And nowadays, other dimension of violence is also cyberbullying. So there are many forms of violence, and as we can see that nowadays, previously, what happens that we have gun violence, we have school bully that was always there. Now we have physical violence that was always, but domestic violence nowadays are also increasing because we are going from joint family to nuclear family these days. So the barrier actually is now to of a social barrier is now little bit becoming dilute there. So these things are also happening along with cyberbullying is a very major crime nowadays because nobody knows what a person is typing in his her uh, mobile phone or something like that. And also, I can say that nowadays terrorism can also be taken as a very major form of violence because it is uh, nowadays happening everywhere in the world. And as our foreign minister S. Jaishankar also have said in many various summits that world have to actually prepare for these things also nowadays. So, sir, these are all my points, sir. Okay. Sanjeev? Yes, sir. This is this is Sanjit Kumar. Firstly, I thank you for giving me this opportunity. Uh, Today, my topic is violence is increasing in India and it's becoming aggressive nation. इंडिया में मैं इंडिया के नेशन के लिए एग्रेसिव सही नहीं है क्योंकि आजकल मतलब बीजेपी जो पॉलिटिक्स में है इसका भी थोड़ा एग्रेसिव नेशन का थोड़ा वो कह सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ये जितना भी पॉलिटिक्स करता है बीजेपी मोस्टली ये कास्ट वाइज मतलब अपना मतलब रिलीजन मतलब देख के मतलब ये करता है इसके कारण भी सोशल मीडिया पर देखेंगे तो जितना भी इसके कारण भी होता है इसके कारण बहुत सारे अभी मतलब देखेंगे कि कोई बीजेपी के पार्टी है जो कि मतलब मुस्लिम के मोहम्मद है उसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर देते हैं तो उसके कारण भी वायलेंस होता है। ये मतलब राजस्थान के था उसका गला काट दिया यही वायलेंस के कारण मतलब कुछ इशू होता है कि मतलब कुछ बोल देने के बाद ये सब होता है। Okay. Tushar? Good evening, friends. My name is Tushar Anand, and I am glad that I got the opportunity to start the discussion. Friends, the today topic given to us for the discussion is violence is increasing in India, and it is becoming a aggressive nation. Friends, I think the topic given to us is of national interest and is of present concerns also, as one of my friends said. Friends, pen speaks. We know that pen speaks much more than the sword.
So you know that violence in India is increasing due to many factors. I will list the factors. First is a lack of job opportunities, corruption, and the deserving candidates does not get the opportunity. And due to movies also, some of the movies recently which creates violence is also a major part which creates towards the violence. And I also want to add that Mahatma Gandhi has also said that when things can be solved by non-violence, then we should avoid violence. Thank you. I would like to open the house of discussion for all of you. Okay, Ashwini. Thank you, friends. I am Ashwini Kumar. I am glad to start the discussion. And this topic is, I think, very sensitive. बिकॉज इसके पीछे कई सारे रीजन है जो इंडिया में आजकल जो जितनी वायलेंस हो रहे हैं। एक तो कम्युनिटी डिस्प्यूट है, कम्युनिटी डिस्प्यूट काफी ऊपर है। दूसरी जॉबलेस है, एक फ्रस्ट्रेशन हो रही है युवाओं में काफी ज्यादा लेकर। और दूसरी एक फ्रेंड ने कहा डोमेस्टिक वायलेंस जो भी है वो भी हो रही है। और एक मूवी को लेकर, मूवी भी एक काफी इम्पैक्ट छोड़ती है सोसाइटी पे, उसके कारण भी काफी सारी चीजें हैं जो हमें देखने को मिल रही है आजकल। लेकिन मेरे केस में ये आई थिंक जो इंडिया में वायलेंस हो रही है उसके पीछे सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी डिस्प्यूट है एंड देन जॉबलेस है आई थिंक। थैंक यू। Okay, Somesh. Okay. So, good evening, friends. My name is Somesh Sharma, and I am very glad that I have got this opportunity to open the house for the discussion on the topic given to us. Violence is increasing in India, and it's becoming aggressive nation. What I think the topic is very much relevant and very much thought-provoking for each one of us. I think the violence is divided into two parts. First is minor violence, and second is major violence. In the minor violence section, there are a lot of things. Lot of violence were come like domestic violence, like cyberbullying. These were not very much frequent in before. But nowadays, due to the web series and like games or PUBG and like other type of things seeing in the society, these minor violence were come into play. But the major violence, like we see that India, Pakistan, and other terrorist attacks were already present in India, and due to the government attitude and the mentality of the people towards uh, thing like we see that in the Delhi CA NRC, so all those kind of things, these major violence were come into play in a very large scale. So in this, I think in the discussion we are going to discuss in those topics, and now I will open the house for the discussion. Okay, Raj. Yes, sir. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I am Raj Brahmachari. First of all, we have to understand what is the root cause of violence. That is the root cause. Some of root cause are given by my friends previously, and I also add some points like lack of education, lack of poverty, lack of employment, and poverty. For example, take the example of poverty, but uh, द लेडीज मतलब कि एक औरत है जिसका छोटा सा बच्चा है और वो गरीब है, तो वो क्या करेगी, मतलब बड़े जैसे शहर में, जैसे दिल्ली जैसे शहर में, वो जाएगी दूसरे के घर में खाना बनाने के लिए या फिर दूसरे के बच्चे को पालने के लिए। तो वो क्या करेगी, अपने बच्चे को छोड़ के दूसरे के घर में जा रही है उसके बच्चे को पालन पोषण करने के लिए। तो उसमें क्या होगा, उसका वो नहीं जाएगी तो क्या होगा, वो खाना भी नहीं खा पाएगा। तो इस चक्कर में क्या होता है कि उसका एजुकेशन नहीं हो पाता है, और फिर वो एजुकेशन नहीं होता था, किसी ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। बिना एजुकेटेड आदमी फिर वायलेंस करने पे ये एक्साइटेड हो जाता है, उसको इजिली उसको मॉडिफाई करके किसी दूसरे तरफ चैनलाइज किया जा सकता है, वायलेंट की तरफ। और एंड कास्ट बेस्ड वायलेंस आल्सो, जैसे फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल कास्ट बेस्ड वायलेंस, the lower so-called lower caste people who get exploited by thousands of years, nowadays they are getting power, so so they want their rights and they choose the path of violence. There should not they should not take a path of violence, and because these things fascinates them to do violence. Thank you, sir. Okay, Manas. Good evening, friends. I am Manav Singh Lodhi, and I am glad to start the discussion.
Friends, the topic given to us today is violence increasing in India and it is becoming an aggressive nation. Friends, in my opinion, it is a very sensitive topic. And I think that saying that India is becoming an aggressive nation, it's very much exaggeration. Yeah, I understand the cases of riots and violence are increasing in the recent times, but at the same time, every single act of violence is being condemned by the majority of our nation. Whenever there is a case of violence, most of the people uh, tend to uh, they tend to avoid it. And friends, I would like to suggest that the topic can be bifurcated into many types, like political and geopolitical violence, domestic violence, cyber violence, and violence between religions. And the problems for and solution for each one of it may be different. The solution for say political violence may be different from that due to cyber violence. So we have to discuss the solution and how to avoid each one of it differently. So now I would like to call all of you to take part in the discussion. Thank you. Okay, Sahil. Good evening, friends. My name is Sahil, and I am very glad to start the discussion today. So, topic given to us is that violence is increasing in India, and India is becoming an aggressive nation. So, as we know, first of all, we must discuss what are the causes that are leading to violence. Means it is due to the political manipulations or political disputes, means the political decisions which are leading to disputes among communities, or maybe some other reasons such as means a group of people, means nowadays it's very common among people that most of the people feel lonely, and they take some other paths which lead to means crimes and all, and that lead to increasing violence, so that a majority of community are getting into a section that we call into aggressiveness, and it will eventually turn a nation into aggressive nation. So we must find a solution, so that we must find a solution to overcome this problem, as my friend said. So with this point, I would like to open the house of discussion for all of you. Rahul. Good evening, everyone. I'm Rahul Chauhan, and I'm glad to start the discussion. And the topic for today's discussion is violence is increasing in India and it is becoming an aggressive nation. In our surrounding, we can notice that violence is increasing day by day. Either it is in office, school, or domestic way. And the main reason for this is the mental peace. In today's time, the people are very short-tempered. They easily get offended. And the main reason for this is the movie and web series, which is manipulating the mind of the young. Please, man, sorry for sound. And the main reason for that, sir, please, someone is making noise so much. Okay, please keep all of you mute. All of you, please keep mute. Yeah, go ahead, Rahul. So the main reason for the violence is the less mental peace of the people, and the people are getting short tempered, and the reason for this is the movie and web series, which is destroying the mind of the people. And the next is the video game, which is controlling the mind of the school children. Because of this, they are making the violence. And the gun culture in today's marriage, we can see that firing a gun, it seems to be an कि बहुत बड़ी बात है कि गन चला रहे हैं तो अच्छी बात है, उस टाइप से ले सकते हैं। और दूसरा रीजन है रिलीजियस। आजकल आप देख सकते हैं कितनी हिंदू मुस्लिम में फाइट होती है, तो उसके कारण वायलेंस बहुत बढ़ रहा है। जैसे अभी अपन ने देखा था, हनुमान चालीसा गा रहे थे और दूसरे साइड मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे, तो उसके कारण भी बहुत वायलेंस हुआ था। वो क्रिटिकल बहुत समय तक चला था। और इसको प्रिवेंट करने के लिए यही कर सकते हैं कि गवर्नमेंट न्यू पॉलिसीज लाए, अच्छे से कंट्रोल करे और स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, जो भी कल्प्रिट हो और जो भी रीजन हो। और सबसे बढ़िया है अपन मॉडल ले सकते हैं जो डेवलपिंग कंट्री है और जो हैप्पी कंट्री है जहाँ पे वायलेंस कम है, जैसे सिंगापुर और स्विट्जरलैंड, जिसको अपन इम्प्लाई करेंगे तो इंडिया का भी डेफिनेटली वायलेंस कम होगा। थैंक यू सर। ऋषभ। ऋषभ, okay,
Yes, sir. Hello. You have participated, Risha. You have done. Now, Aniket. Good evening, friends. My name is Aniket. I am glad to start the discussion. The topic for discussion given is violence is increasing in India and it is becoming aggressive in nature. I think, friend, this is a very concerned topic, matter to think, need to think, and I think the violence can have only negative impact. This can't be have positive impact, and we can classify violence. We can find what are the reason and cause of violence. We can have solution. So in classification, I want to add that on the basis of caste, religion, and domestic violence, there we see lots of violence in India, and the reason I think this is due to lack of education, poverty, and unemployment. These are giving actually frustration and stress to the people, and this and the outcome is comes into violence. And for solution, I want to give I want to suggest that don't blindly follow any leader, any party, any community. Uh, think of it and be positive and thank you, friends. Anybody left? Okay, so I think now please unmute each one of you. So everybody has introduced the topic, and now I give you 10 to 15 minutes where you can very calmly discuss your points. Very calmly, need not to be in any kind of chaotic situation. So discuss your points, and then we conclude. So please go ahead now. I think, Thank you, friends, sir. we First should of all, I first, want to find say why something there is about violence. how to reduce the violence. Now, Raj, I would like to suggest that first हमें मालूम तो हो violence. Now, हेलो फ्रेंड I want to पहले say some पहले points मालूम तो हो कि Okay, okay, किसके so कारण हो so रही है solution of Please, reducing violence. guys, Like first of all, reduce the use पहले of मालूम mobile तो हो phones किसके कारण हो रही and है do फ्रेंड some first of all, meditation. we should know about what is After actually doing violence meditation, and why the our violence mind is will actually become I Yes, should. yes, being I so. want to add. get relaxed. I want to add. Because I want to you add the cannot first point find when a I solution of violence. something when you don't know the problem, guys. So Yes, sir, I yes, sir. think Mind. So we when have you to are use saying our mobile phones and do some yoga and meditation. नो फ्रेंड पहले पहले रीजन Okay, जानना हो कि so हो क्यों रही है ना so इस चीजों I के want बारे में yes, 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 Ashwini, yes, But Ashwini. just by doing I think yoga, we people can we right, can't means actually know the yeah, just by yeah. doing Okay, yoga, okay. we can't Yeah, stop the and violence that are happening due to cybercrime. Means just by doing Yes, yes, yoga, yes. we there, can't there stop are many the dimensions in which Lot of I think there are lot violence of is signs. happening. Yes, So, yes, yes. Yes, Rishabh, yes, yes, yes. first Yes, of Rishabh, all, attention. Is the I first violence of that all, point I would suggest we that should actually categorically but we should classify say the that violence happening yes, but so we that should we say can that give we should each other first points. classify the type of violence. the- there are a lot of Which we will be classifications discussing. and yes, there are reasons a lot for of the Then on classification basis of We of can our do it in classification, little we bit will three discuss. ways only. Yes, See, yes, one yes, there is are a one lot can of be lot of personal. classifications were There are for something the that is violence. individual and other thing is Yes, communal. yes. Two I things think is the very violence Of much. which course, is of course. yes, 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 Violence yes. is I want first to of say all that individual violence can be and a group. So classified it is into three parts. so it is Rishabh, First one is Rishabh. It is communal. divided First one into is lot of categories individual like Yes, in violence. the domestic Second one is communal like violence, and third one is yes, yes, First national of yes, all, violence. I yes. guess So if individual level violence and community level Group violence or level. group First, level I violence. think first I think third it one will is be more Individual, violence Individual also. there first violence can be is individual. many not so violence. much Domestic connected violence, connected with communal the I violence, think the major most violence which we which are should be created concerned by the of Domestic mentality municipal of the level people violence No, in a no, religious way. no, no, divided friend, into friend, एक domestic second, friend, violence Like and एक non-domestic second, violence. friend. yes, yes, No, Tushar, friend, yes, yes. अभी एक second, You friend. are अभी this जो yes, I'm अभी very जो much agree with Tushar that he is saying that the violence is related with the communal dispute, but this is due to the mentality of the government which we are seeing today that is very much towards the Hindu See, and the nation, you should not be biased yes, yes, directly yes. towards yes, 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 government, I No, no, guess. no, no, no. we No, I'm should not not biased. I'm directly just give giving We the the should reason. actually Want to I'm say think that okay, 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 a Rishabh. society want to leads say to Yes, yes, crime yes. Let me speak. only when Let me you speak. Let have me a speak. individual मेरे level को of point crime add करना going है. on. I think Yes, but listen, but friend. major, but the major मुझे लगता violence है is कि अगर हम coming. लोग एक एक करके But डिस्कस individual करें, yes, अगर yes, हम लोग yes. एक एक करके One by डिस्कस Yes, one. it करें is. वायलेंस But को पहले पहले yes, क्लासिफाई कर what ले, I पहले think, रीजन what देख I ले, फिर yeah, सॉल्यूशन the देख ले, reason. तो मेरे ख्याल से हमारा I Yes, डिस्कशन yes. that बहुत अच्छा I होगा. think Okay, okay, I okay, think okay. that So please ठीक है, let's speak. पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या that रीजन है violence- violence Tushar का. and Somesh, Tushar ठीक and है. Somesh, you are speaking like I guess you are giving points. I think we are getting your points all by all. But you should also Yeah, yeah, listen our points and Yes, listen yes. everyone. yeah. So I'm Ashwani listening, is saying Rishabh. I'm something. listening. I'm Ashwani, listening. Yes, Ashwani, please I'm say your just, I'm point. just saying, Rishabh. First of all, I will like to speak that
I'm just saying that mentality of the people in the religious way is very much very main reason for this aggressive nation Yes, attitude. the most So this is the most concerning एक kind of सेकंड violence. attitude, एक the सेकंड attitude of the people एक सेकंड were कोरोना के were कारण ना coming. कोरोना के कारण एक सेकंड प्लीज कोरोना के कारण स्थिति ऐसी हो गई कई सारे लोगों की जॉब चली गई है ये बहुत बड़ी इशू भी हुई है Yes, इसके कारण yeah, that is Yes, I also appreciate. a Yeah. और गवर्नमेंट को ब्लेम करने से पहले Government. ये भी तो सोचो कि इंडिविजुअल लेवल पर अगर कोई क्राइम कर रहा है तो गवर्नमेंट Yes. क्या कर लेगा यार Yes, yes, आफ्टर ऑल यही योर बात है। मेंटालिटी इज गोइंग स्क्रूड एवरी मोमेंट देन यू we कैन are- नॉट एक्सपेक्ट दैट योर नेशन विल बी बिहेविंग इन Yes, सम Yes, अदर and वे even if when you are Rishabh, personally I am behaving in giving like that. point people are for you. taken by government. नहीं, think Eric, that- You should take my point. It's good, but see, first of all, decide I among want to- ourselves what are the violences. Yes, yes. Through games Yes, you yes, can yes, say yes. I get. They must Yes, I can Movies say you can say I get. Even through even communal violence I will say is the root cause of actually violence. एक सेकंड फर्स्ट हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे बात कर लेते हैं friends। डोमेस्टिक Yes, वायलेंस yes, और नॉन individual डोमेस्टिक level. Yes, वायलेंस yes. फर्स्ट इंडिविजुअल लेवल बात कर लेते हैं लेवल Yes, at अगर individual level, पे if देखा someone जाए is doing a crime, अगर if someone is doing a crime at individual level, पे देखा then जाए there तो are डोमेस्टिक police वायलेंस और नॉन and डोमेस्टिक kind वायलेंस of होता है तो अगर डोमेस्टिक and वायलेंस other. पे देखा जाए Yes, तो yes. See, individual level of crime is very broad. You can Yes, go yes. for domestic, you can go for But- economical. Your boss can harass But someone, what are sexual we are crime. discussing? There are many Rishabh, crimes. we are It can be discussing. verbal, it can be cyberbully. Rishabh, हम So- बात जिस बारे में कर रहे हैं उसको समझो। हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि aggressive nation इंडिया होता चला जा रहा है। उसका रीजन ये है डोमेस्टिक वायलेंस और नॉन डोमेस्टिक वायलेंस होना चाहिए and so on. Yes, yes, guys, I am seeing aggressive nature in this GD also. So if you can say that we are getting aggressive, we are aggressive, of course. मैं एक पॉइंट करना चाहूंगा मैं You are, you are, करना चाहूंगा yeah. Rishabh, listen to me one point. I think first of all, I think first of all, टॉपिक जैसा कि टॉपिक है कि क्यों इंडिया में वायलेंस बढ़ रहा है इसका मुझे क्या लगता है एक रीजन है कि पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ रही है इंडिया में Yes, yes, yes. जो एक गैप है अमीरी और गरीबी में बढ़ रही है Yes, yes, जिसके yes. चलते अभी- stress yes, बहुत yes. ज्यादा आ रही है अभी मैंने ऐड किया है Guys, कोरोना के कारण but there are other गरीबी reasons हमारे also. पास 80s में भी थी देखो गरीबी हमारे पास 80 में भी थी बट जो सोशल नॉर्म है वो डाइल्यूट होते जा रहा है धीरे धीरे Yes, yes, जो yes, रिस्पेक्ट हो रहा है Yes. रिस्पेक्ट एक दूसरे के बीच था सोशल हार्मनी था हाँ, वो ये बिल्कुल डिसरप्ट सही हो रहा है बात है। गरीबी तो हमेशा से तुम इंडिया में था यार बात कर रहे हो इंडिविजुअल लेवल पे वायलेंस 1947 से भी गरीब था इंडिया इंडिविजुअल लेवल से बात करें तो हमेशा गरीब था ये था लेकिन इतना ज्यादा सोशल हमारा इतना डाइल्यूट नहीं था गरीबी पहले था लेकिन इतना ज्यादा मिडिल क्लास नहीं था इंडिया में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना हैवी हम लोग पे आ रहा है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इंक्लाइंड होते जा रहे हैं एक तरफ से होता है तो ये भी एक रीजन बनता है ना कि हम समझ नहीं पा रहे हैं इन चीजों को इसका एक आइसोलेशन भी रीजन है फुल आइसोलेशन पहले से था, कोरोना के कारण हम लोग आइसोलेट हो गए यही वगैरह इन्वॉल्व नहीं थे Eric, song बट अभी में जो भी करंट गन सिनेरियो का use है होता है। तुम्हारा मूवीज हो गया वेब सीरीज हो गया ये सब तुम्हारा जो इन्फ्लुएंस डाल रहा है पीपल पे आई थिंक Even उसके songs, कारण पता है even तुम्हारा songs. अभी मैं Yes, एक yes, पॉइंट ऐड करना चाहता एक पॉइंट ऐड पोवर्टी करना एक रीजन चाहूंगा हो सकता है और एक पॉइंट और है कि जो न्यूक्लियर फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली भी धीरे धीरे करके वायलेंस को बढ़ावा दे रही है और अभी मैं एक पॉइंट ऋषभ की जो न्यूक्लियर फैमिली वाली बात है और अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस था वो बढ़ गया तो था मुझे लगता है कि कोविड के समय में इक्वलिटी जो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया था जेंडर में या रेस में या कास्ट पे वो हम लोग को अगर दे दें तो मेरे ख्याल से वायलेंस कम हो सकता है अभी फ्रेंड्स अभी सबसे ज्यादा जो कुछ चीज हुई है की वजह से होने वाला वायलेंस वो भी है वो भी है कम्युनल है ऑफ कोर्स कम्युनल से कोई डिनाई नहीं कर रहा है हमेशा था वायलेंस में ये जैसे कि हम बात करें जैसे कि वो बोल रहे हैं कि तो अगर पहले भी वायलेंस था पहले इतना वायलेंस नहीं था लेकिन पहले क्या था ना कि बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक नहीं था इंडिया में पहले जो था मेटेरियलिस्टिक नहीं था पहले नाउ डेज क्योंकि गवर्नमेंट आई है उसने अपनी मेंटालिटी को एक एग्रेसिव रखा है और आज की डेट में जो सेकुलर नेशन इंडिया है उससे वो टुवर्ड्स मूव कर रहा है हिंदुइज्म की तरफ तो ज्यादातर लोगों की जो मेंटालिटी रिलीजियस है वो अकॉर्डिंग टू दैट वो सोमेश मैं तुम्हारे पॉइंट से डिसएग्री करता हूँ सोमेश मैं तुम्हारे पॉइंट से टोटली डिसएग्री करता हूँ इन ब्लंट वे क्योंकि तुम बात कर रहे हो कि कम्युनल तो पहले नहीं थे क्या पहले क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं रह रहे थे यार लेकिन सुनो ऋषभ क्या पहले नहीं था कम्युनल 1947 में क्या कम्युनल नहीं हुआ था वायलेंस जब बढ़ रही थी बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे पास तब भी था ट्रेन भरी आती थी लाशों से यार मेक ए पॉइंट मैं उस बात को नहीं मान रहा हूँ उस तरीके से
वायलेंस हुआ था दिल्ली में और कितने दिन तक वो चला था। जब कोरोना आया तब जाकर के उसको रुकना पड़ा। कम्युनल वायलेंस एक रीजन है जिसकी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट की मेंटालिटी टुवर्ड्स आप सिर्फ गवर्नमेंट को ही ब्लेम कर रहे हो यार, आप इंडिविजुअल लेवल पे देख ही नहीं रहे हो आदमी को क्या हो रहा है। हम लोग बात करते रहेंगे हमारे पास तुम इंडिविजुअल प्लीज अपना अपना पॉइंट हम लोग दे देते हैं, बेटर रहेगा। मेरा पॉइंट सुन लो यार गाइस, मेरे 2 ही पॉइंट है बस। मेरा पहला पॉइंट है कि देखो, एक है कि सोशल नॉर्म्स जो है डाइल्यूट हो रहे हैं, ठीक है, विच इज लीडिंग टू एवरीथिंग। हमारा सब कम्युनल धीरे धीरे करके, ऑब्वियसली अगर हमारा फैमिली धीरे धीरे वीक होगा, फैमिली पावर्स वीक होंगे, जैसे एक होता है क्या कि एक होता है हमारे पास रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द फैमिली, सोशल बॉन्डिंग। अगर हम धीरे धीरे इंडिविजुअलिस्टिक की तरफ जाएंगे तो वो हम होगा। सोमेश माय सेकंड पॉइंट प्लीज, Somesh, my second point, please. यार मैं अपना पॉइंट I will give my second point. I will give my second point. You can speak too much. ठीक है ना? चांस मिलेगा। Yeah. Yes, please. I get your point. But the problem is that कि अभी गवर्नमेंट लेवल पे आते हैं जहाँ से कि गवर्नमेंट आता कहाँ से, हमारे में से ही आता है ना यार। वो बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट एक रीजन है, दूसरा रीजन तुम्हारा भी है जो तुम ओके गो विथ इट यार, ओके गो विथ इट यार, गवर्नमेंट यार, ओके ओके अदर वो भी रीजन, डोमेस्टिक वायलेंस और साइबर बुलिंग रीजन है, लेकिन उनका रीजन गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम मेंटालिटी ऑफ पीपल। योर मेंटालिटी विल बी स्क्रूड, गवर्नमेंट विल बी स्क्रूड, सिंपल, as simple as that. You are not understanding my point. Sincere manner. You are not listening in a very sincere manner. I am also taking other points also. I have listened you very sincerely, guys. You are just going for the government. Other thing you are directly mislodging. One of the point. Government is one of the reason. I have had with many of your points at that time. I think that एक और point add करना है। People are going from the secular nation towards the Hindu nation. Proper education अगर नहीं दिया जाए, अगर proper education नहीं provide किया जाए, whether it was Hindu nation, I am agree with you. There are 1 billion Hindu, of course, majority. अकाल के नाम पे लोग वायलेंस कर रहे हैं, आपने राज पॉइंट इज गुड। एक सेकंड, कई बार ऐसे होते हैं कि जो इंटरनल वायलेंस होता है वो एग्जाम समय पे नहीं लेने के कारण भी होते हैं। जी अश्वनी ने सही कहा। उसमें हम पुलिस का भी ये कह सकते हैं कि प्रशासन सही तरीके से नहीं काम कर पाया वायलेंस के समय, तो हम मान सकते हैं इस बात को। और एक धर्म पे डायरेक्ट ब्लैटेंट अटैक कर देना ये बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। वो हमारे एंसेस्टर से चला रहा है, हम कैसे उसको ब्लैटेंटली अटैक कर देंगे यार? वो हमारा सोसाइटी का ढांचा है यार। अभी मैंने तो वही तो बोला कि कई बार एग्जाम समय पे नहीं होने के कारण स्टूडेंट द्वारा जो वायलेंस की जाती है वो भी इंटरनल वायलेंस है, बिहार ग्रुप वायलेंस है, ग्रुप वायलेंस के रूप में कह सकते हैं हम उनको। वो रेलवे को जलाया गया, वायलेंस है वो। नुकसान हुआ है, ये कॉमन पीपल ने किया, ये एग्रेसिवनेस। अब हम कहेंगे कि मोदी गवर्नमेंट में उसको जला दिया ट्रेन को यार, तो इट विल बी लाइक अ व्हाट? और मेरे को लगता है एजुकेशन सिस्टम में और तरह के अगर प्रॉपर एथिक्स सिखाया जाए तो आई थिंक दैट ये वायलेंस का कारण बन सकता है। जैसे कि यूपीएससी एग्जाम्स में जो रहते हैं वो बचपन से ही मतलब कम्युनल डिस्प्यूट पे आते हैं, कम्युनल डिस्प्यूट पे आते हैं, तो वहां पे एथिक्स पढ़ाया जाए तो एजुकेशन सिस्टम और डेवलप हो जाए। As Manas mentioned about that, cyberbullying is also one kind of means type of terrorism is also जैसे कि हमें आना चाहिए कम्युनिटी वायलेंस के बाद। राजस्थान का वायलेंस हमने देखा कि वहां पे एक कम्युनल वायलेंस था, फिर देन हमने बंगाल में भी देखा कि वहां पे 2 रूप में गया, एक कम्युनल के भी फ्रेम में कह सकते हैं, एक ग्रुप वायलेंस में उसको भी कह सकते हैं, और एक कह सकते हैं कि प्रशासन की भी कमी थी कुछ हद तक। सारे वे में एक ही वायलेंस को कह सकते हैं, बट वो सिर्फ एक रीजन कह देना गलत होगा मेरे अकॉर्डिंगली। एक पार्ट है इस एग्रेसिव नेशन में जो वायलेंस हो रहा है उसका, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे लगता है कि कुछ सॉल्यूशन पे बात कर लेना चाहिए क्योंकि टाइम होते जा रहा है। हाँ हमारे पास 5 मिनट ज्यादा नहीं बच रहा है, हम सोल्यूशन पे थोड़ा बात कर लें यार। पे कर लेना चाहिए, सही बात। मुझे लगता है कि अगर हम सबसे पहला है कि हमें फैमिली लेवल पे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, योगा और ये सब मेडिटेशन को थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पर भी। एक इनकलकेशन देना चाहिए कि हाँ गेम्स आर नेसेसरी टू प्ले, बट फिजिकल गेम्स इन और वर्चुअल गेम व्हाट वी आर
playing with that should be controlled in a controlled way. If we go, that should be very good. कम्युनल हार्मोनी तो एक ऐसी चीज है कि अगर हम डिस्कस करें तो बहुत लंबी जा सकती है, बट 2 पॉइंट एक मैं बस बोलना चाहूंगा कि कम्युनल हार्मोनी के लिए पहले दोनों साइड जो कम्युनिटी है उनको समझना होगा आपस में भी कि क्या रीजन है उनके कन्फ्लिक्ट का, और उनको रिजॉल्व खुद में करना होगा, ठीक है? क्योंकि कम्युनल वायलेंस में फिर होगा क्या, इफ समबडी इज मेकिंग कोई अभी दुर्गा पूजा का पंडाल कर रहा है, somebody goes and throws something in the pandal, then just give rise to. लेकिन उसको भटकाने वाला कौन है? One last thing I would like to mention. इंडिविजुअल ही है, कहीं ना कहीं हमको पता रहेगा। और मेरे को ये लगता है कि वेब सीरीज वगैरह सब हमारे लिए अब लीडर्स है या नहीं, देखो हम ये नहीं कर रहे, बट कोई ना कोई तो वेस्टेड इंटरेस्ट है। सेंसर बोर्ड को स्ट्रिक्ट होनी होगी मूवीज और वेब सीरीज को लेकर, ठीक है? कंट्रोल करना होगा। आजकल जो अमेज़न प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, इनको भी थोड़ा कंट्रोल सेंसर के अंदर लाना होगा। काफी ज्यादा दिखाई जा रही है। लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, सुन लो, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रही है, सुनो मेरा बात सुनो, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रही है इंडिया में, कल्चर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, उसका डोमेस्टिक वायलेंस का एक ही तरीका है कि हम न्यूक्लियर फैमिली को धीरे धीरे करके हल्का हल्का ज्वाइंट फैमिली या फिर एक फैमिली बॉन्डिंग की तरफ पहुंचे। तो हमारा जो सोच है पुरुष प्रधान देश का, हम लोग को इस चीज का कारण ये है कि जैसे कि छोड़ना पड़ेगा। आज की डेट पे लेडीज एंड जेंट्स दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, मेजर काउज है। हाँ, इसका पॉइंट बहुत अच्छा है। हमारे ग्रुप डिस्कशन में जो टॉपिक है उसका एक पॉइंट है कि इंडिया एग्रेसिव नेशन बनते जा रहा है। इंडिया एग्रेसिव नेशन बनते जा रहा है, इसका मेन कॉज डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकते हैं। देखो, इंडिया के वायलेंट बनने का सबसे बड़ा रीजन इंडिविजुअल लेवल ऑफ माइंड है, इंडिविजुअल मेंटालिटी है यार। अगर इंडिविजुअल मेंटालिटी में हम सही रहेंगे तो हम नहीं पहुंचेंगे ओवरऑल। एम्प्लॉयमेंट भी है, एक को एम्प्लॉयमेंट है, जैसे हस्बैंड को एम्प्लॉयमेंट है और उसके वाइफ को नहीं है, तो वो जो है प्रोमोशन करेगा, तो वो नहीं जा पाएगी। हमको इंडिविजुअल लेवल पे डोमेस्टिक वायलेंस इंडिया को एग्रेसिव बनने में कोई रोल प्ले नहीं हमेशा से डोमेस्टिक वायलेंस था, पहले भी था, आज भी रहेगा। Yes, thank you friends. I think we have very chaotic discussion and I think everyone has given their valid point and opinion. Now let me conclude on behalf of entire group. So in our discussion we find what are the causes of violence, what in this we find that political violence is there, like on the basis of caste, religion, and domestic violence is there also. And we find then what are the region, I think region. So there's a inequality in the gender and race, caste. These things are the main reason, and the poverty and the education, lack of education, and unemployment, due to which the stress and frustration is developing in human in India. So violence is creating. These are the reasons we come into picture, and then at the last we find the solution. What can be the solution? Like we should see everyone in one eye, like एक आंख से देखने वाली बात हम लोगों ने बात की, और हम लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए और किसी पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए, खुद का दिमाग लगाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। एंड थैंक यू फ्रेंड्स। Okay, so let me give you the feedback now. So this feedback which I am giving you is first of your introduction. So Amit gave the introduction. I told you, introduction always has a structure. Structure means there is a statement given to you. You can agree with the statement, you can disagree with the statement, partially agree, partially disagree. You can do anything. So in such kind of statements, in the starting introduction, you have to agree or disagree with the statement or something like that you have to do. And then you have to tell what kind of topic is this. आपका sensitive है, currently relevant है, thought provoking है, cause of concern है, what do you think is the topic? And then you should give some kind of classification. So the best would have been that, friends, the topic given for discussion is violence is increasing in India and it's becoming aggressive nation. So if you agree with that, you will say, friends, largely I agree with the statement.
and it is a very serious matter. It is a sensitive issue and it is a cause of concern. Now friends, I think we should discuss this entire topic into under two heads. One, what are the causes which has increased the violence in India in recent past, and second, what can be the solution for that. तो आपको बिल्कुल क्लियर है, कॉजेज बताओ और सॉल्यूशन बताते जाओ, ये आपने इसको बेसिकली करना है। पर पहले तुम्हें एग्री डिसएग्री कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम डिसएग्री करते हो कि नहीं, इंडिया इज नॉट बिकमिंग द एग्रेसिव नेशन, तो क्लासिफिकेशन ये नहीं होगा कॉजेज एंड सॉल्यूशन, तो कुछ और क्लासिफिकेशन होगा। आई डोंट एग्री विद दिस, सो आई थिंक वी कैन डिस्कस दैट what are the reason why it is being projected that India is aggressive nation, what are the reasons for that, though it is not, so आपको वैसा कुछ करना पड़ेगा। Now this is what the starting point is, उसके causes बताते जाओ और आप उसका solution बताते जाओ। जैसे आपने domestic violence बताया या आपने community clashes बताया, they are the causes, and then what are the solution, that also you have to tell। Amit started, he said traffic lights, domestic violence, but traffic light वाली violence की बात नहीं हो रही है, ये रोड रेज की बात नहीं कर रहा था। इंडिया इज बिकमिंग अग्रेसिव नेशन, रोड रेज सब जगह होता है, ये उसकी बात नहीं है। फिर उसने रीजन, अमित सर, ओके, रीजंस आर देयर, मूवीज, वेब सीरीज, सॉल्यूशन आल्सो वी शुड डिस्कस, दैट इज व्हाट ही सेड। सो अमित को आई विल गिव यू 6.2 इन इंट्रोडक्शन। देन ऋषभ सेड डायमेंशन ऑफ वायलेंस, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इज नॉट द वायलेंस एक्चुअली, और इट इज नॉट द अग्रेसिव नेशन का, वो एक रीजन हो सकता है बट मेन नहीं है। सी यू कैन नॉट से साइबर बुलिंग के साथ स्टार्टिंग नहीं कर सकते, you need to tell the main reason which you think. Cyber bullying can be one of the reason, but it may not be the main reason, so you have to tell what is the main reason. Then you talk about domestic violence and nuclear family issues, social barrier khatam ho rahe hain, that domestic violence I accept is better than cyber bullying, what example you were giving. Then terrorism का आपने example लिया, but terrorism और violence ये दो अलग चीजें हैं। terrorism the extreme form of violence, and terrorism normally in India के केस में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। when Pakistan is sponsoring terrorism in India, so that is a state sponsored, वो अलग चीज है। तो थोड़ा सा ऋषभ तुम इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट को पकड़ नहीं पाए, so I'll give you 6.2 for that. संजीत enters and he directly starts saying that बीजेपी जो है अगेंस्ट मुस्लिम बात करती है और पॉलिटिक्स है, सोशल मीडिया है। पॉइंट जो उसने रेज किया पॉलिटिक्स एंड सोशल मीडिया की है, पॉलिटिकल डिवीजन एंड सोशल मीडिया, पॉइंट दोनों वेरी रेलिवेंट है, पॉइंट दोनों ही रेलिवेंट है, लेकिन तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना है, डायरेक्ट नहीं लेना है डिस्कशन में कभी भी, क्योंकि कोई उसको नहीं भी मान सकता है। एंड मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर तुम किसी का बाई नेम लेके क्रिटिसिज्म कर रहे हो, वो एलिगेशन होता है, एलिगेशन होता है, और तुम उस एलिगेशन को प्रूव ही नहीं कर सकते। कभी एलिगेशन को प्रूव करना पड़ता है कि बीजेपी इज टॉकिंग डूइंग द वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स। अगर ये बात तुम्हें लगता है सच भी है, तब भी तुम इसको प्रूव नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना। Had I been your place, I would have said that, friends, what I think there are main reasons are the political vested interests of some political parties, which are dividing the communities on the religion basis. ये बोल दो, तुम नाम बिना लिए बोल दो, तो that is how you can do that. और उसमें और भी ग्रुप्स आ जाएंगे, सोशल मीडिया भी आपने पॉइंट सही बताया। So संजीत, since you have taken the wrong route by naming the this thing, or he may not appreciate it, तो आपको 6 मार्क्स मैं दूंगा। तुषार ने अच्छा स्टार्टिंग किया था आप सबने। He said national interest है, ये इस टॉपिक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड कॉज ऑफ कंसर्न है। पेन स्पीक्स लाउडर देन स्वॉर्ड। अब ये जो उसने फ्रेज लिया, मेरे जगह गांधी जी की, अगर तुमने नाम भी लिया था गांधी जी का, तो अगर तुम गांधी जी की स्टेटमेंट देते हैं, एन आई फॉर एन आई विल मेक एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड, दैट वुड हैव बीन बेटर, क्योंकि वो इनटॉलरेंस से रिलेटेड है। एन आई फॉर एन आई विल मेक एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड। फिर तुमने बोला लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड मूवीज क्रिएटिंग वायलेंस। तुम भी पॉइंट्स बताए तुमने, लेकिन मेन पॉइंट पे तुम हिट नहीं किए। मेन पॉइंट्स और भी वायलेंस के, तो तुमने इंट्रोडक्शन में तुमने क्लासिफिकेशन नहीं दिया कि व्हाट यू वांट। अगेन तुम सब लोग वही गलती कर रहे हो, इंट्रोडक्शन में तुम डायरेक्टली पॉइंट्स लपट रहे हो बताने। मैंने बोला स्ट्रक्चर दो ना उसको, इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स मत बताओ। कॉजेज आर देयर, सॉल्यूशन आर देयर, एक आधा कॉज एक आधा सॉल्यूशन देना दे दो, लेकिन ओपन एंडेड छोड़ दो ना उसको। इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हें को टाइम नहीं ना देगा वहां पे बोलने का उतना, तो क्लासिफाई करो जल्दी से, 2-4 स्टेटमेंट ऊपर वाली बोलो, क्लासिफाई करो और छोड़ दो। तो तुषार को 7.1 दूंगा। अश्विनी said it is a sensitive issue and then there are many reasons for that. One can be community dispute, जो अच्छा रीजन था, अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा रीजन है, डोमेस्टिक वायलेंस ठीक है, एंड देन मूवीज ऑल्सो उसने एक नाम लिया, सेंसिटिव इशू है, और ये सारे रीजन। तो अश्विनी ने भी ठीक बोला, उसको 7 नंबर दूंगा। लेकिन अगेन तुम डायरेक्टली भिड़ गए आंसर देने में, तुम्हें यार क्लासिफिकेशन करो।
सुमेश ने बोला साइबर क्राइम, पबजी, ये सारी बातें उसने की। मेजर और माइनर वायलेंस के इश्यूज में 2 कैटेगरीज बांटी, मेजर एंड माइनर, वो ठीक है, हो सकता है मेजर एंड माइनर इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन कॉजेज है वो, तो बोलो कॉजेज आर देयर एंड फ्रेंड्स, कॉजेज आर आल्सो सम मेजर कॉजेज, सम माइनर कॉजेज, तो वो ठीक है, अच्छा डिवीजन हो जाएगा। लेकिन कॉजेज एंड साथ में तुम ये बताओ कि उसमें सोल्यूशन क्या है। फिर गवर्नमेंट का एटीट्यूड तुमने बताया, दैट कैन बी कॉज। एंड अगेन तुम्हें एक और बात बता रहा हूं कि गवर्नमेंट को तुम डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ऐसे, और उसको अवॉइड भी करना, नहीं तो कुछ मेंबर्स आपके भिड़ भी जाएंगे उसमें, क्योंकि वो ऑब्वियसली अलग स्टैंड भी लेंगे। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट डायरेक्टली एलिगेशन, ये पार्टी के अगेंस्ट, उसको इनडायरेक्ट तरीका होता है बोलने का, दैट गवर्नमेंट शुड कंट्रोल, ये चीज हो जाता है। 6.4 दूंगा सुमेश को। राज, आपने जो है, आपने लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, आप अलग डायरेक्शन में लेंगे यार, पॉवर्टी आपटी का एग्जांपल देंगे आप राज, और उसके लिए मैं आपको 6 से कम आपको मार्क्स मिलेगा राज को। राज इज देयर और ही इज इज नॉट देयर, तो अलग डायरेक्शन में राज डिस्कशन को ले गए थे। मानस ने बोला कि इट इज एग्जैजरेशन, ये एग्जैजरेशन ऐसा है नहीं, उसने अलग स्टैंड लिया पूरे ग्रुप से। एक्ट ऑफ वायलेंस इज कंडेम्ड बाय एवरीवन, जब होता है तो कंडेम करते हैं, उसने बोला। पॉलिटिकल, साइबर, रिलीजियस वायलेंस, कई रीजन हो सकते हैं। तो मानस ने भी डिवीजन करने का ट्राई किया, लेकिन मानस आपने नाम लिए बिना डिवाइड कर दो कि फ्रेंड्स आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट, इट इज लार्जली एग्जैजरेशन। पर जब तुम ऐसा बोल देते हो ना, तो फिर ये कैटेगराइज नहीं कर सकते आगे। तुमने बोल दिया कि वायलेंस, मैं मानता नहीं कि वायलेंस हो रही है, फिर तुम रीजन भी दे रहे हो कि वायलेंस क्यों हो रही है। I was partially agreeing. First statement I was agreeing. Second statement that India is becoming an aggressive country, that I was disagreeing. I do not agree. It's largely is exaggeration. मतलब कि वो है, तो तुम उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली बोलो, राइट, तब वो चीज आ जाएगी। एंड सोल्यूशन हर चीज के लिए डिफरेंट है, वो तुमने पॉइंट अच्छा बोला, तो तुम्हें मैं 6.4 दूंगा। साहिल ने बोला पॉलिटिकल डिसीजन है, कम्युनिटी क्लैशेस हैं, तो ये रीजंस हैं उसके। पॉइंट ठीक पकड़ गया साहिल, 6.4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन बोला नहीं, कंप्लीट नहीं किया उसने। राहुल ने बोला शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, फिर मूवीज, वेब सीरीज रीजन है, रिलीजियस एंगल है, तो तुम रीजन पे भिड़ गए, कॉजेज पे भिड़ गए कि क्या कॉजेज है, रीजन क्या है। तो 6.7 दूंगा राहुल, पॉइंट तुमने ठीक बोले थे, लेकिन अगेन क्लासिफिकेशन नहीं किया। अनिकेत ने बोला लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये रीजन है उसके, तो उसको मैं 6.8 दूंगा अनिकेत। ये है तुम सब लोगों का। तो तुमने स्ट्रक्चर नहीं पकड़ा, मेरे हिसाब से किसी ने भी स्ट्रक्चर ढंग से नहीं पकड़ा। स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बता दी क्या होना चाहिए कि सब एग्री करो, डिसएग्री करो स्टेटमेंट से, फिर क्लासिफाई करो। अब सारा क्लासिफिकेशन के बाद कॉजेज पे आ जाती है बात, तो कॉजेज को एक एक करके बोलते चले जाओ। कॉजेज में क्या है, हमारा कंट्री डाइवर्स कंट्री है, बहुत ज्यादा, बहुत डाइवर्स है। डाइवर्सिटी किस नाम पे है? रिलीजन पे, लैंग्वेज पे, कास्ट पे, कल्चर पे, सब पे डाइवर्सिटी है। और हमारी कंट्री में फॉलो होना चाहिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिवीजन इन डाइवर्सिटी नहीं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और उसी के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अब वो कह रहा है कि कुछ लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कम्युनिटीज को डिवाइड कर रहे हैं, और लार्जली ऐसा देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिटी को डिवाइड करती हैं। कहीं पे भी इलेक्शन जो लड़ा जा रहा है वो कम्युनिटी को डिवाइड करके लड़ा जा रहा है, ये रियलिटी है। ये इस कम्युनिटी का है, ये उस कम्युनिटी का, जब भी इलेक्शन होते हैं तो ऐसी बात आती है। नाउ इफ दैट थिंग गोज टू द लेवल ऑफ हेट्रेड, तो भाई वायलेंस हो जाएगा। इफ द डिवीजन इन कम्युनिटी विच आई एम गई, आप कौन सी कास्ट के हो, आप कौन से रिलीजन के हो, आप कौन सी कम्युनिटी के हो, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, उसके बेस पे अगर इफ आई स्टार्ट प्रीचिंग अ लॉट, तो हेट्रेड फैल जाएगा। एंड ऑफ लेट वी हैव स्टार्टेड सीइंग कि वो हेट्रेड फैल भी रहा है, लोगों को हेट्रेड स्पीच भी सुनने को मिलती है, वो सब है। और जिससे जो इलिटरेट बंदा है, जो बहुत इग्नोर आदमी है, जो वो गलत डायरेक्शन में चल पड़ता है। और ऐसा देखा गया है कि जब भी किसी पॉलिटिकल लीडर ने कोई हेट्रेड स्पीच दी है तो उसका वायलेंस बढ़ जाता है। दैट इज समथिंग व्हिच इज टू बी प्रोटेक्टेड। दूसरा रोल, अब एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, बस सोशल लीडर भी है, आपके रिलीजियस लीडर भी है। तो इन लीडर्स को पॉलिटिकल वेस्टर्न इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए कम्युनिटीज को डिवाइड नहीं करना चाहिए, पहली बात है। दूसरा आता है आपका रोल ऑफ मीडिया। मीडिया दूसरी चीज है। अब लोगों तक, इन लोगों की बात, पॉलिटिकल जो लीडर है उनकी बात लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मीडिया करता है। मीडिया शुड बी इम्पार्शियल। लेकिन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड आफ्टर यू नो फॉर कपल ऑफ इयर्स नाउ, कि मीडिया हैज आल्सो कोलाइडेड विद पॉलिटिकल पार्टीज। मीडिया ने भी अपनी अपनी पार्टी चूज कर ली, मैं इस पार्टी का, मैं इस पार्टी का, तो अब मीडिया उनका माउथपीस बन गया। नाउ हम लोग मीडिया पे ट्रस्ट करते हैं, और मीडिया माउथपीस है, तो हम वही समझेंगे जो मीडिया बताने की ट्राई करेगा। एंड कॉमन मैन नाउ ब्रेन वॉशिंग उसका चल रहा है, तो वो भी वायलेंस की एक रीजन है। तीसरा चीज आता है जो यू नो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्रेड।
वो आजकल इंटरनेट ने काम कर दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना दी, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीज, if something negative is being spread, it is being spread very fast. See, all these things used to be there earlier also, but they were not spreading so fast. Now something bad is happening, it is being spread very fast. That is another reason, which is the cause of concern. So all these, technology should not play the negative role. So टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल करना है, जैसे ट्विटर हो गया, ट्विटर ने कंगना रनावत को बैन किया, तो कोई रीजन है वो बैन किया होगा शायद, तो वो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि ट्विटर हुआ, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, इनको भी देखना पड़ेगा कि नेगेटिव चीज ना स्प्रेड हो, किसी ने किसी को कुछ गलत किया, कम्युनिटी क्लैश हुआ, कम्युनिटी क्लैश पहले भी होते हैं, लेकिन उन कम्युनिटी क्लैश को यूज करके और क्लैश करवाना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। किसी जगह कम्युनिटी क्लैश हो गया, मान लो कोई जगह क्लैश हो गया, अब उस क्लैश को वीडियो पे दिखा दिखा के और क्लैश करवाना, दैट शुड बी अवॉइडेड, उससे फायदा नहीं होगा। There are positive things in the society, there are negative things in the society. Why do you project negative only? Why not positive? Now the point is people want to see more negative. अगर मैं कोई अच्छा वीडियो बनाऊं कि भाई कंस्ट्रक्टिव वीडियो, ये ऐसा हो सकता है, उसको शायद लोग ना देखें, नेगेटिव बनाऊं उसको ज्यादा देखेंगे, और तुम अपने कमर्शियल इंटरेस्ट में क्या चाहते हो, टीआरपी चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, ज्यादा व्यूअरशिप चाहते हो, इवन यूट्यूबर व्यूअरशिप चाहते हैं कि भाई साहब मैं कुछ ऐसा बना दूं कि जिससे ज्यादा लोग देखें, आज नहीं देखोगे तो कभी नहीं देख पाओगे, ये टाइटल के साथ वीडियो डाल दूं तो सब लोग देखना स्टार्ट कर देंगे, अंदर कुछ नहीं है, लेकिन आज नहीं देखोगे तो कभी नहीं देख पाओगे, ये मैंने टाइटल बना दिया सपोज, एंड देन आई एम पुटिंग यू इन द ट्रैप एंड देन यू सी दैट, एंड अंदर नेगेटिव चीज है, एक घंटे की नेगेटिव चीज देख रहे हो। इवन इन टीचिंग कम्युनिटी, इवन इन टीचिंग कम्युनिटी, अगर मैं किसी का क्रिटिसिज्म करने बैठ जाऊं, किसी भी टीचर का, यूट्यूब पे ये बहुत चलता है आजकल, कोई टीचर दूसरे टीचर का क्रिटिसिज्म करके पूरी स्टोरी सुना रहा है बच्चों को, बच्चे सुन रहे हैं। No, this is called a negative presentation of the things, not positive. आपको पॉजिटिव भी स्प्रेड करना है, दैट इज ऑल्सो ड्यूटी ऑफ पीपल। सो हर सोसाइटी में पॉजिटिव नेगेटिव स्प्रेड करने वाले होते हैं। ट्रबल इज नेगेटिव स्प्रेड जो कर रहे हैं वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में कर रहे हैं, पॉजिटिव स्प्रेड करने वाले चुप बैठ जाते हैं, वो नहीं करते, उनको भी करना चाहिए, इंफॉर्मेशन लॉन्च करना चाहिए, उनको रोल प्ले करना चाहिए। तो मीडिया हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल लीडर्स हो गया, अब बात आ गई कॉन्स्टिट्यूशन की, जुडिशियल सिस्टम। अल्टीमेट जो लास्ट में हमारा जो फेथ होता है ना, वो जुडिशरी पे होता है। तो जुडिशरी इंडिया की बहुत स्ट्रांग है और इंटीग्रेटेड है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंटीग्रेटेड है। तो जुडिशरी इज ऑल्सो टू प्ले अ वेरी स्ट्रांग रोल इन दैट। जुडिशरी फाइंड समथिंग हैपनिंग रॉन्ग, जुडिशरी इज टू प्ले अ स्ट्रांग रोल इन दैट, सो दैट दिस थिंग शुड नॉट बी स्प्रेड। एंड इंडिया इज अ फुल ऑफ लिटरेट पीपल, इलिटरेट पीपल, सब तरह के लोग हैं। तो जो पॉजिटिव व्यू देने वाले लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए और इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। फिर बाकी जो आपने इश्यूज रेज किए, पॉलिटिकल जो अपना बेनिफिट के लिए लोग कर रहे हैं, या कम्युनिटी क्लैशेस करवा रहे हैं, या आपका मीडिया अपने बेनिफिट के लिए कुछ कर रहा है, या आपके ये चीजें बाकी डिवीजन क्रिएट हो रहा है, ये तो एक मेजर रीजन है। माइनर रीजन क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस की आपने बात की, आपने वेब सीरीज की बात की, आपने साइबर क्राइम, वो भी है, वो माइनर इश्यूज है, उनको भी अवॉइड करने की जरूरत है। वो टेक्नोलॉजी के अंदर ही आ जाएंगे कि कोई गेम ऐसी बन गई जिसमें एक दूसरे को मार रहे हैं तो बच्चे भी वैसे सीख रहे हैं, वो भी एक माइनर इश्यूज है उसका। तो दिस वे एवरीथिंग। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की आती है? पेरेंट्स की, टीचर्स की, एक जो आपका रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है उसकी, पॉलिटिकल लीडर उसकी। भाई तुम गलत ना करो और तुम अच्छा भी करो, ये दो चीज। आप एक पॉलिटिशियन है, सपोज आप हेटरेड फैला रहे हैं, प्लीज यार भाई गलत मत कर, गलत मत फैला, कम्युनिटी क्लैश हो जाएगा। और आप एक अच्छे इंसान हैं, चुप होकर बैठे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा यार तुम भी बोलो ना यार, पॉजिटिव बोलो, लोग, पीपल शुड लिसन टू यू। सो दिस टू pronged strategy, don't speak bad and speak positive. So Gandhi ji, again I will refer Gandhi ji because he's a messiah non-violence. So he said, वो बंदर के तीन, बापू के तीन बंदर, तुम्हें ही पता बापू के तीन बंदर क्या हैं? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। उसका मतलब है यार कोई, बापू के जो तीन बंदर थे उसका मतलब था कोई, आज सोचो जरा, बुरा ना देखो। व्हाट्सएप पे मैसेज आया, पता है गलत है, मैं तुम्हें बताऊं, मैं देखता ही नहीं हूं। आई नो दिस इज अ रॉन्ग मैसेज, आई डोंट इवन सी, बिकॉज इट इज गोइंग टू स्पॉइल योर माइंड एक्चुअली। आई नो कि ये क्लैश से रिलेटेड है, आई विल नॉट सी इट। बुरा ना बोलो, अगर तुम्हें लगता भी बुरा तो बुरा ना बोलो, क्योंकि वो नेगेटिविटी है। बुरा ना सुनो, तो इससे लार्जली रुक जाएगा। लेकिन आज क्या हो रहा है? बुरा ही बोला जा रहा है, बुरा ही सुना जा रहा है, बुरा ही देखा जा रहा है। तो ऐसे से पंच मारो ना यार, जीडी में नंबर मिलेंगे तुम्हें। बापू को लेकर महात्मा गांधी तुम्हें नंबर दिलवाएंगे जीडी में, राइट?
So that way you people are to conclude this. And yes, unemployment is also one of the main reason. तो youth है, unemployment है, महंगाई बढ़ रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, कोविड के टाइम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ नहीं है, महंगाई बढ़ी है, तो उसके तरीके से वो भी वायलेंस हो रहा है। और इस तरीके से आपको जीडी करना है। तो मेरी बस कुछ पॉइंट्स हैं कि अपने जो बोलने का तरीका होता है उसको बड़े सिस्टमेटिकली तुम बोल सकते हो, किसी को डायरेक्टली क्रिटिसाइज ना करो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को का नाम मत लो, किसी को डायरेक्ट कास्टिगेट मत करो, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं उस तरीके से, लेकिन भाई स्ट्रक्चर पकड़ो। इंट्रोडक्शन वगैरह में यू हैव टू पिक अप द स्ट्रक्चर। मेरे पास लास्ट के 2-3 मिनट हैं, कुछ पूछना है तो पूछ लो या बताना है तो बता दो। सर आज जैसे जीडी हुआ है सर, इसमें तो किसी का पॉइंट सुनने का मिला ही नहीं सर, देखते तो शायद तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, तो शायद आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हेलो सर, हाँ जी, आवाज जा रही है सर। सर ये बोल रहे थे कि जैसे कि आज का जो जीडी हुआ तो इसमें मतलब एक समय पे ज्यादा लोग बोल रहे थे, तो किसी का पॉइंट समझ में नहीं आ रहा था, तो सर इसमें कैसे मतलब इसीलिए मैंने तुमसे इंट्रोडक्शन लेके तुम्हारे व्यूज समझ लिए थे। बाकी यहाँ पे जब आओ तो बोलने की ट्राई करो, चाहे समझ आए चाहे ना आए, तुम बोलने की ट्राई करो। मेरे पास कई बार छोटा ग्रुप होता है, कई बार बड़ा ग्रुप होता है, लेकिन तुम ट्राई करो बोलने की, वहां पे तुम्हें बेनिफिट होगा इसका। ये मैं समझता हूँ कि ग्रुप बड़ा था 11 बच्चों का, लेकिन क्या करना है कि बच्चे अब वो मैनेज नहीं कर पा, वो खुद ही एंटर हो जाते हैं। रात को 11 बजे वाला ग्रुप चला ही नहीं, रात को जो 11:30 वाला जीडी उसमें आए नहीं कोई, 2-3 बच्चे आए बस, तो वो मिसमैच हो रहा है चीजों का ना। तो कई बार ज्यादा आ जा रहे हैं बच्चे, कई बार कम आ रहे हैं, तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, निकालू भी कैसे। तो क्या है कि जब ग्रुप आपका बन जाए तो तुम बोलना स्टार्ट करो। जैसे ऋषभ भी तो बोल ही रहा था, ऋषभ चिल्लाए पड़ा था, बिल्कुल सारा ध्यान, सारा सेंटर ऑफ अटेंशन बना था ऋषभ। तो तुम बोलना सीखो, तो बोलने में कोई ट्रबल नहीं है, बोलने की ट्राई करो, वहां पे इसका बेनिफिट होगा तुम्हें। तुम अपनी प्रैक्टिस करो, और वहां पे नॉर्मल मिलेगा तुम्हें सिस्टम। डोंट वरी, यहाँ पे तो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना यार, सबको पता प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये चीज सर। और वो ऐसे बीच में हंसना चालू हो गए थे 2-3 लोग, तो उनको देख के वो मत करो, मैंने पहले बता दिया, हंसो मत, वहां पे ये नहीं चलता। ये रिपब्लिक टीवी थोड़ी चल रहा है यार, जीडी चल रहा है यूसीएल का। तो सर वो ऐसे कोई ऐसे यार वगैरह वाले फ्रेजेस यूज करेगा वो सर, वो नहीं करने हैं, मैं बोलता रहा हूँ, वो नहीं करना चाहिए तुम्हें। यार, दोस्त, यार, और ऐसे ब्रो, यार, ये चीजें मत बोलो ना यार। ये तुम्हें क्या कहते हैं वहां पे, और ऐसे एक्सप्रेशन भी मत शो करो कि इरिटेट हो रहे हैं। यार ये क्या है यार, ऐसे मत करो ना, इरिटेट मत हो। बड़े तुम यार आईयूसीएल के एग्जीक्यूटिव हो, मान के चलो ना, चेयरमैन के सामने बैठे हो तुम्हें वैसे बिहेव करना है। कम से कम तुम तो अपनी रिस्पेक्ट करो। तुम जब जाओगे तो एक चीज का ख्याल रखना, तुम ये मान के जाना कि तुम आईयूसीएल के ऑफिसर हो, तो तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे उस दिन, तो फील लेना यार उस दिन जाके। और अब आए हो, यहाँ तक आए हो, तो बनोगे भी, 100% बनोगे तुम। मैंने आज तक ऐसे बच्चे नहीं देखे जो इंटरव्यू तक पहुंच गए और लाइफ में आगे कुछ करना पाए हो, ऐसा नहीं होता। तो तुम तो बनोगे ही, वो तो पक्की बात है। तो आज से ही बनने के फील लेना स्टार्ट करो ना यार। अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो और तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो यू स्टार्ट फीलिंग टुडे दैट आई एम एग्जीक्यूटिव वर्किंग इन महारत्ना फॉर्च्यून 500 कंपनी। स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट। अगर तुम नहीं करोगे तो बच्चों की तरह हंसोगे अगर जीडी में, तो ऑब्वियसली गलत है ना यार। सर एक्चुअल में जीडी ऐसा होता है क्या, मतलब इस तरह का जो मछली बाजार बन जा रहा था? मछली बाजार देखो कई बार बन जाता है, 10% केस में बन जाएगा वहां। 10% केस ऐसे होते हैं जहां 2-4 ऐसे भिड़ जाते हैं तो वह बोलने नहीं देते, ऐसा होता है। लेकिन लार्जली नहीं होता। लार्जली इसलिए नहीं होता है, नंबर 1, यहां तुम्हें पता है कि नंबर नहीं मिल रहे, कट नहीं रहे हैं कुछ, तुम्हारा रिजेक्शन नहीं होगा। वहां पे नहीं होता, वहां पे आराम शांति से बच्चे बात करते हैं। नंबर 2, या तुम्हें पता है प्रैक्टिस कर रहे हो तुम। और नंबर 3, ये ग्रुप भी बड़ा है, 11 बच्चों का ग्रुप है ये। वहां पे 7 या 8 बच्चों का ग्रुप होता है। सर मेरा एक दोस्त है, वो वही 11 बच्चों का ग्रुप में दिया जीडी, बहुत बढ़िया से होगा। हाँ सर, आईयूसीएल का। हाँ तो फिर ये मान के चलना कि वह मछली बाजार ज्यादा नहीं बनेगा, मेरे को नहीं लगता। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बन जा रहा है सर, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो ना यार। हाँ वही बात है, ये बनाना है, मैं बोल रहा हूँ कि बनाना है। अच्छा अगर तुम टर्बुलेंट पानी में तैर ही लोगे ना यार। यस सर, यस सर। यहाँ तो मैं बोलता हूँ ना, तुम्हें बोलो और आप बात करो, जोर सब बोलो। तो यहाँ तो बनाना ही है, प्रैक्टिस कब करोगे तुम लोग? हाँ ये सर। तुम्हें 4-5 तो ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं। आप उनको बोलोगे भाई बोल ले, फेल हो जाएगा, निकल जाएगा, तू भी बोल ले कुछ, तो बोलेगा ना भाई मैंने आज बोलना ही नहीं है, अगली बार देखेंगे। 3-4 लोग वैसे हम लोग सजेस्ट नहीं कर सकते ना सर, अपना जो कलीग रहे उनको जीटी में कर सकते हैं, ग्रुप टास्क में। अच्छा जीटी में कर सकते हैं। ग्रुप टास्क में क्या होता है, ग्रुप का मेंबर होते हैं ना, तो आप बोलते हो कि ओके अमित, आई थिंक यू शुड आल्सो गिव द पॉइंट। तो वहां कई बार बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर क्या हुआ, मैंने स्टार्टिंग किया,
स्टार्टिंग किया और उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला, तो मैंने आगे भी बोला, फिर कोई कुछ नहीं बोला, तो सर अब मेरी सारी बातें खत्म हो गई। फिर मैंने बोला ओके फ्रेंड्स, नाउ आई ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन। फिर कोई कुछ नहीं बोला, तो फिर मैंने कुछ को बोला, संजीत व्हाई डोंट यू गिव योर पॉइंट, तो संजीत फिर कुछ नहीं बोला, फिर कंक्लूजन भी मैंने किया। तो ऐसी सिचुएशन आती है कि वहां पे आदमी बिल्कुल नम हो जाता है, बोल ही नहीं पाता कि भाई बोल। अब आप सोचो कभी जीडी किया ना हो लाइफ में, पहली बार वही कर रहे हैं जाके, तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि भाई क्या बोलूं, कहां से बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और औरा भी होता है ना वहां पे यार, वो 5-6 HPCL में 6-7 ऑब्जर्वर होते हैं, 6-7 बच्चे होते हैं, जितने बच्चे उतने ऑब्जर्वर HPCL में, और वो टुकुर टुकुर तुम्हारी ओर देख रहे होते हैं। HPCL में वो देखते, आंख में आंख मिला के देख रहे हैं। अब बच्चा बोलता है यार बोलूं कैसे, ये 6-7 लोग घूर रहे हैं, मेरे को बोलूं कैसे। तो एक बच्चे ने बोला सर मैं तो बोलना चाहता था, लेकिन वो 6-7 लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं क्या देख रहे हैं सर, मैं तो बिल्कुल नहीं बोल पाया सर। ये भी सिचुएशन होती है। तो इसलिए यू नीड टू बी शेमलेस, वही तो मैं बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो आपने बोलना है भाई साहब बिल्कुल बिंदास, ये चीज रखनी है, बट प्रोफेशनली बोलना है, बोलो लेकिन प्रोफेशनली बोलो, राइट। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, मतलब कभी कभी स्पीक करते वक्त थोड़ा अग्रेसिव आ जाता है, तो उसको क्या कंट्रोल करने के लिए करना होगा? रेशो को फ्लो में जा रहा है थोड़ा। गुड। तो सर उसको कैसे कंट्रोल के लिए करना होगा सर थोड़ा, क्योंकि वो नहीं कोई बात नहीं, बोलता जा, डोंट वरी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मतलब वो लैंग्वेज सर जैसे यहाँ पे पॉइंट्स किसी के समझ नहीं आते तो मतलब दिक्कत हो रही थी, मतलब सर उसमें ऐसे रिएक्ट कर जाना जैसे कि मतलब नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज सही नहीं है ना सर। मतलब ऐसे नहीं करे, ऐसे मैं रिएक्ट करने लगूं तो शाम तक अपना सीढ़ी तोड़ लूं। तुम्हें बताऊं, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए लाइफ में, डोंट गेट इरिटेटेड, बी वेरी काम में जाओ, मतलब चेहरे पे एक्सप्रेशन नजर नहीं आना चाहिए। यस सर, पॉइंट्स एक्चुअल में थे लेकिन वो रश की वजह से नहीं बोल पा रहा था। ये ऑल प्रैक्टिस, आई टेल यू, practice is the only thing, if I ask you, nothing else. Yes sir. Practice only, your performance improves, nothing else. And that is what I am telling you, keep doing as much practice as possible, that always helps you. सर एक चीज पूछना, जैसे इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ब्राउन सूट चल जाएगा ना सर, और जैसे शर्ट है स्काई ब्लू टाइप शर्ट, आप ना फोटो खींच के भेज देना, आई विल बी इन बेटर पोजीशन टू गाइड। यस सर। टाई जरूर लगाना लेकिन, है ना। यस सर, टाई, ब्राउन सूट चल जाएगा ना सर। I take leave of you now and we meet next time, huh?